सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आप लोगों ने ये अध्याय पढ़े होंगे, इसलिए सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई आपके पास you would have read both the chapters, so we won't read the entire chapter. हम एक पद पढ़कर इस कहानी को शुरू करेंगे। We will read one verse and begin the story. और वो है पहला से, आपने अगर पढ़े हैं जो जिसके लिए अनाउंस किया गया था, हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, सिर्फ क्योंकि समय बचाने के लिए सिर्फ एक पद से शुरू करते हैं। So in order to save time, you would have read the chapters. We'll begin with only one verse. और वो है पहला शमूएल 10 अध्याय और एक पद। 1 Samuel chapter 10 and verse 1. 1 Samuel chapter 10 verse 1. तब शमूएल ने अगर आप कैमरा खोल सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। It will be great if you can open your cameras. तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, "Has not the Lord anointed you ruler over his inheritance?" प्रभु जी इस वचन पर आशीष दे। Lord, bless this word. और अपने लहू से हमें धो पवित्र कर। Sacrifice in your blood. दुष्ट और शैतान संसार की जितनी शक्ति यीशु के नाम से बांध देते हैं। We bind all the seen, unseen powers of Satan in the name of Jesus. हमारे शरीर को भी अपने पूरे नियंत्रण में रख। Lord, keep our body in your complete control. पवित्र आत्मा आप पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. अगर आप बात नहीं करेंगे सारा परिश्रम व्यर्थ है। Lord, if you will not speak, our whole labor is in vain. न केवल बात करें, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। Not only speak, but bring real change lives of the people. वो सिर्फ प्रभावित ना हो बल्कि परिवर्तित हो प्रभु। Lord, they may not just be influenced, but they may really be transformed by your word. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Lord, fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9 for this message. आप दे, पुकारने का शब्द है। Give boldness to speak and a voice to cry out. और पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वर्ग खोल दे। Holy Spirit, open heaven for us. हम दोनों भाइयों को पवित्र करें और क्रूस के पीछे छिपा ले। Cleanse both us brothers in your blood and hide us behind your cross. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. बाइबल बताती है कि इस्राएल में लगभग 43 राजा हुए थे। The Bible tells us that in Israel there were about 43 kings. और राजा आते रहे, जाते रहे और बहुत कुछ हमारे सिखाते रहे। Kings kept on coming and going, kept on teaching us many things. हाँ, जो पूरा संयुक्त राष्ट्र इस्राएल था, उसमें उसके लिए सिर्फ 4 ही राजा हुए। पूरा जो संयुक्त इस्राएल था The entire united Israel had only 4 kings. हाँ, पहला शाऊल, उसके बाद उसका बेटा इशबोशेत, और फिर दाऊद, और फिर सुलेमान। First Saul, then his son Ishbosheth, then David, and his son Solomon. ये 4 राजा इस्राएल के, संयुक्त इस्राएल के राजा हुए। These were the 4 kings over the united nation of Israel. हाँ, उसके बाद यहूदा के 20 और इस्राएल के 19 राजा हुए, जो कुल 39 राजा थे। After that, there were 20 kings of Judah and 19 kings of Israel, total of 39. ये कहानी लगभग 3000 साल पुरानी है। This story is about 3,000 years old. हाँ, और इस्राएल के पहले राजा हम साउल से हमें क्या सिखा के जाता है, उस बात को सीखना चाहिए। And we want to learn what does the life of King Saul, the first king, teach us. हाँ, साउल बिन्यामीन गोत्र का था। Saul was from the tribe of Benjamin. और 6 फीट 6 इंच से लगभग ज्यादा, इतना है करीबन लंबा था। Approximately 6 feet 6 inches tall. हाँ, अगर ये लोगों में खड़ा हो जाता तो लोग बोने दिखना देने लगते थे। If you would stand amongst the people, they would look very short in front of him. हाँ, ये मगर एक साउल पुराने नियम में भी था। So this Saul of the old, there was a Saul in the New Testament also. पुराने नियम का जब साउल दिखाई देता था, बड़ा प्रभावित करता था, और उसके देखने से लोग प्रभावित होते थे, यार वास्तव में क्या राजा है। The Old Testament Saul was very influential. When they saw him, they were influenced. What a king we have! क्या राजा है भाई। What a king we have!
हाँ, एक राजा नए नियम का, एक साउल नए नियम का भी था, वो भी बिन्यामीन गोत्र का था और लगभग 5 फीट 1 इंच और 2 इंच का था, बड़ा छोटा और नाटे कद का, कमजोर, और उसे देखकर भी लगता था यार ये क्या आदमी है। And there was another Saul in the New Testament about 5 feet 1 or 2 inches, also of the tribe of Benjamin, very weak, very tiny looking man, no physical strength in his appearance. हमारे यहाँ ऐसे बोने को लिख देते हैं, मैं नटुआ कह Such देते a हैं। man we call in our language as Natwa, I mean short. हाँ, तो ग्रीक में उसे कहते हैं पॉल, छोटा छोटा। And in Greek language, it is Paul, which means tiny. हाँ, इसका बिल्कुल शरीर से बिल्कुल प्रभावित नहीं करता था, मगर आत्मिक रूप से ये बड़ा प्रभावशाली था, बड़ा प्रभावित करता था। He was not at all influential physically when you looked at him, but spiritually he was very powerful. और ये दोनों साउल तलवार से ही मारे गए। And both these Sauls were killed by the sword. एक अपनी तलवार से मरा, दूसरा सरकार की तलवार से मरा। One was killed with his own sword, the other was killed by the sword of the government. हाँ, और जो पुराने नियम का था, ये शर्म से भरा हुआ, मतलब शर्म से भरा हुआ मरा ये। And the Old Testament Saul died, his end was in shame. और दूसरा जो था ये बड़ी महिमा से भरा And हुआ था। the second one of the New Testament died in great victory and honor. हाँ, हम बाइबल में देखते हैं कि 4 आदमियों ने बाइबल में आत्महत्या की। And we see the 4 people in the Bible who committed suicide, हाँ, बाइबल में जिनका रिकॉर्डेड है। which are recorded in the Bible. एक तो साउल के हथियार ढोने वाले ने, अहीफोतोल ने, जो पहले दाऊद का मंत्री था और बाद में उसके बेटे क्या नाम अश्तलोन के साथ जुड़ गया था, इसने आत्महत्या की। और चौथी यहूदा इस्करियोती ने। So 4 people, Saul, then is the armor bearer 2, number 3 was Ahithophel, who was a counselor to David, then became the counselor of Absalom, and then it was Judas Iscariot in the New Testament. आज हम सिर्फ साउल के बारे में। Today we only look at Saul. साउल लोगों के दिल का आदमी था। And Saul was a man after God, after the heart of the people. वो बहुत प्रभावित करता था, लोगों के दिल का आदमी था। And he really used to influence people. He was a man after people's heart. हाँ, मगर दाऊद जो था वो परमेश्वर के दिल का आदमी था। But David was a man after God's heart. शाऊल का उद्धार हुआ या नहीं हुआ, ये तो बड़े विवाद का विषय है। Whether Saul was saved, born again or not is a point of controversy. हाँ, मैं इतनी बाइबल नहीं जानता, इसलिए इस विवाद में उलझना नहीं चाहता। I don't know the Bible that much, so I don't want to entangle in this conflict. हाँ, अब उस समय का जो माहौल था वो क्या था? And what was the atmosphere at the time? सैमुएल बुढ़ा हो गया था। Samuel had become old. और उसके बेटे अयोग्य थे। His children were unworthy. इस्राएल के सामने एक बड़ा सवाल मुंह भाए खड़ा था। And there was a big question in front of Israel. सैमुएल के बाद क्या होगा? Who after Samuel? हाँ, और ये मांग को इस्राएल में बड़ा बहुमत मिल रहा था, यार सैमुएल के बाद क्या होगा, वो तो बुढ़ा हो गया। And very big question in front of them. Samuel is old. What after him? हाँ, तो उन्होंने कहा भाई सैमुएल तू जाने से पहले में एक राजा तो दे जा। And they said to Samuel, before you go, give us a king. ये इस्राएल के विश्वास को दर्शाता है कि जो छिपा विश्वास था कि इस्राएल को यहोवा नहीं राजा ही संभालेगा। And this showed the faith of Israel that there's only a king that will support Israel and look after them. अगर सैमुएल ये आदमी चला गया तो फिर क्या होगा? If this man Samuel goes, then what will happen to us? ये इस्राएल में छिपा हुआ विश्वास दिखाते थे कि वो यहोवा पर नहीं किसी मनुष्य पर विश्वास करते। This showed the hidden unbelief of Israel, that they did not believe in the Lord but in a man. अगर ये आदमी चला गया, ये लोग चले गए तो फिर क्या होगा? If this man goes, then what will happen? ये उनके अंदर जो छुपा हुआ अविश्वास था प्रभु के प्रति वो दिखाता है। This shows the unbelief they had towards the Lord. सैमुएल ने बहुत समझाया, भाई राजा आएगा, ये करेगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत मांगो। And Samuel kept on explaining to them, don't ask for a king. This is the damage that will happen if you ask for a king. मगर वो माने नहीं। But they did not agree.
वो जानते थे कि वो सोचते थे हमारा भी एक ये विचार है, वैसा नहीं कि वो ये हम भी चाहते हैं। We also have the same thought. That's what they used to think. व्यवस्था बदल दो तो राज बदल दो तो देश ठीक हो जाएगा, व्यवस्था बदल दो तो ये ठीक हो जाएगा, और भाई जी घर बदल दो तो परेशानी दूर हो जाएगी, नौकरी बदल दो, जगह बदल दो, पत्नी बदल दो, पति बदल दो, मामला सही हो जाएगा। Changing things will change our life. We change our job, we change our wife, we change our home, we change our society, we change our law. We change everything, and then change will come. कुछ नहीं बदलने वाला Nothing is going to change. जब तक आप और मैं नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलता। If you and I will not change, nothing will change. हाँ, आप ये सोचिए, और प्रभु यही चाहता है कि वो हालात बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला, वो चाहता है मैं और आप बदलें। And the Lord knows, He knows circumstances change, nothing will change until you and I change. आज आप इस पोस्ट में, कल प्रमोशन हो जाएगा, दूसरी पोस्ट में चले जाएंगे, सोचेंगे तब मेरा बॉस मुझे जो अड़का के रखता था, अब मैं उसे अड़का के रखूंगा। ऐसे लोग Today you are in a post, get promoted, go to another post, and say that boss look down upon me. Now I look down upon him. आप उस पोस्ट पे भी और उस जगह पर भी उतना पैसा पाकर, नौकरी पाकर, आप कभी भी कुछ नहीं बदलेंगे, कुछ हो नहीं सकता, आपके हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप ना बदल जाए। Even after being on that post and position, nothing will change until you change. हो सकता है आप ज्यादा परेशानी में फंस जाए। Maybe you will get into more problem. हाँ, तो मान गया, सैमुएल मान गया, उनके लिए एक राजा का अभिषेक किया। पढ़िए Samuel- पहला सैमुएल 10:1। Samuel accepted and he provided them with the king. First Samuel chapter 10 verse 1. तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हाँ, और सैमुएल का अभिषेक किया जाता, सैमुएल का अभिषेक किया गया। And Saul was anointed. तो एक विशेष किस्म का तेल होता था जो आम आदमी को बनाने का अलाउ नहीं था, उससे राजा को अभिषेक किया जाता था। And there was a special kind of oil that was made that was to anoint the king. और फिर लिखा था उसने सैमुएल को, साउल को चूमा। And so he kissed Samuel. हाँ, एक तो तेल लगाकर उसे कहा ये अब से इस्राएल का राजा है। And first he anointed Saul and said, "This is now the king of Israel." और उसे चूम कर इस बात को देता है कि मैं तुझे स्वीकारता हूँ, मैं तुझे राजा होने के लिए स्वीकारता हूँ, चूमना इस बात को दिखाता। And kissed Saul and indicating that I accept you as the king of Israel. हमारे मिडिल ईस्ट के कई देशों में ऐसा होता है कि वो जाति भाइयों को चूमते हैं, मगर कोई दूसरा भाई होगा उसे नहीं चूमते। इसका मतलब है कि हम तुझे नहीं स्वीकारते। And in the Middle East, the people of one tribe, they kiss each other, but they will not kiss the person of another tribe to say that we don't accept you. हाँ, चूमने का मतलब है मैं इसे स्वीकार करता हूँ राजा, मैं इसे भाई की तरह स्वीकार। Kissing means I receive you, I accept you as my brother and friend. पौल लिखता है कि तुम एक दूसरे को चूमो, इसका मतलब है कि तुम एक दूसरे को अपने भाई की तरह स्वीकार करते हो। And Paul writes in his letters, kiss one another with a holy kiss. That means acknowledge each other as brethren. तो सैमुएल ने साउल को चूमा कि मैं तुझे राजा की तरह स्वीकार करता हूँ। Samuel kissed Saul, saying, "I acknowledge and accept you as my king." हाँ, भजन 2 और 12 पढ़िएगा। Read Psalm 2:12. Psalm 2:12. हाँ, भजन 2:12। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वह जिसका भरोसा उस पर है। हाँ, वो कह रहा पुत्र को चूमो, नहीं तो तुम नाश हो जाओ। Kiss the son, lest he be angry and you perish in the way. हाँ, उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लो परमेश्वर के पुत्र की तरह, वरना नाश हो जाओ। And he says, acknowledge the Lord Jesus as the Son of God, otherwise you will perish. हाँ, सैमुएल ने घोषणा की उसे चूम कर कि मैं तुझे राजा की तरह स्वीकार करता हूँ। And Samuel kissed Saul and said, "I acknowledge you as my king." हाँ, बाइबल में प्रथा थी इस बात के लिए, तो जब मिलते थे तो मत्ती में पढ़िएगा 46:49, मत्ती 46:49। और तुरंत Matthew 46:50. मैथ्यू 26:49। और तुरंत हाँ, यीशु के पास आकर
कहा हे रबी नमस्कार और उसको बहुत चूमा। हाँ, Who, he immediately went up to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and he kissed him. हाँ प्रियो, देखिए क्या बात थी। उसने चूमा और कहा हे रब्बी। आप यहूदा स्कूती को जहां देखोगे उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं कहा, सिर्फ रब्बी कहा। Wherever you see Judas Iscariot, he always called the Lord Rabbi. He never called him Lord. लॉर्ड नहीं कहा, प्रभु नहीं कहा, उसे प्रभु He नहीं स्वीकार। never called him Lord. और ये सिर्फ मक्कारी थी कि मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। पहले तो तू अपने स्वामी को बेच के आया है, यहाँ पर अभी बेच के आया। It is complete hypocrisy that I acknowledge you as my friend and Rabbi, when he just told the Lord. हाँ, दाम दे चुका था वो। He's already paid the price. हाँ प्रियो, वो सिर्फ मक्कारी कर रहा था ये बात। It was doing complete hypocrisy. कई लोग दिखाते हैं कि मैं प्रभु को स्वीकार किया हुआ, मगर उनके वास्तव में उन्होंने प्रभु को अपने लालच के कारण, घमंड के कारण, व्यभिचार के कारण, विरोध के कारण, जलन, अपने प्रभु को बेच चुके होते हो। Many people, they show outwardly that they've received the Lord. They are, but they truly, out of greed, jealousy, pride, and wickedness, they've already sold the Lord. हाँ, वो प्रभु को बेच चुके होते हैं। They have sold him. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। The Lord Jesus is the door of heaven. है नहीं? उसने कहा मैं द्वार हूँ। He said, "I am the door." कौन सा द्वार है? Which door? स्वर्ग का द्वार है। The door of heaven. और कई लोग स्वर्ग के द्वार को चूमकर नरक चले जाते हैं। And many people kiss the door of heaven and go to hell. हाँ, बहुत लोगों और क्या होता है, कुछ लोग हैं नरक के द्वार को चूमकर स्वर्ग चले जाते हैं। And there are many who kiss the door of hell and go to heaven. हाँ, वो डाकू नरक के द्वार को चूमकर कहाँ चला गया? क्रूस पर। The robber, having kissed the door of hell, went to heaven on the cross. हाँ हाँ भाई, सैमसन नरक के द्वार को चूमकर कहाँ चला गया? Samson, having kissed the door of hell, went to heaven. अहाब नरक के द्वार को चूमकर कहाँ चला गया? Ahab, having kissed the door of hell, went to heaven. हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे नरक के द्वार को चूमकर स्वर्ग चला गया। Hezekiah's son Manasseh, having kissed the door of hell, went to heaven. और ये साउल स्वर्ग के द्वार को चूमकर नरक चला गया। And Saul, having kissed the door of heaven, probably went to hell. यहूदा स्कूती स्वर्ग के द्वार को चूमकर नरक चला गया। Judas Iscariot, having kissed the door of heaven, went to hell. इन सबके पास आत्मिक अनुभव थे, They all had spiritual experiences, मगर आत्मा नहीं थी। but not the spirit itself. हाँ, देखिए आत्मिक अनुभव आपके पास हो सकते हैं। You may have spiritual experiences. भाई मेरे पास बीमारी आई, मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने निकाल दिया। I had sickness. I prayed, the Lord removed my sickness. ये आपका अनुभव है, आत्मिक अनुभव। This is your spiritual experience. हाँ, मैंने प्रार्थना की, वो दूसरा चंगा हो गया। ये I prayed for somebody and he was healed. हाँ, मगर आपकी प्रार्थनाओं से चंगाई तो मिली होगी, मगर आत्मिक चंगाई नहीं मिली। Your prayers have got physical healing, but not spiritual healing. आपका आत्मिक अनुभव और आत्मिक ज्ञान ये नहीं साबित करता कि आपको आत्मिक रूप से उद्धार हुआ है। Your spiritual knowledge and spiritual experience is no proof that you're spiritually born again. हाँ, आप एक अनुभव में जीते हैं, आप सच्चाई में नहीं जीते। You live in experiences, not in the truth. हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा वो हुआ, इससे कुछ नहीं होने वाला। This did, I did this and I did that and I preached this and I did that. Nothing will happen. हाँ, साउल बहुत 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 अच्छी और बहुत प्यारी शुरुआत की। लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा तो आपको जल्दी समझ आता चला जाएगा। Saul made a very good beginning. कईयों को कहते रहो, पढ़ते नहीं, पढ़ के ही नहीं देंगे। तुम कहे You keep on telling some people to read, but they will not read. The soul उन्हें पता है बकवास करनी है, इसे को सरमन देना है, हमें सुनना है, मजबूरी है, मगर पढ़ के नहीं देते। This man has to speak and I have to listen, but they will not read the word. वो भी अपनी जिद से बने कि बेटा कहे जाओ तुम, हम भी They are also caught with their stubbornness. You keep on. अगर मैं telling them, they will not read. मैं अगर हाथ उठाऊं तो आधे से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हम पढ़ के आए। If I ask you to lift your hand, well, less than half the people can say that we've read it. कितनी बार कहा होगा बताओ? How many times you would have said?
हाँ, वो आप जो कहते रहो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। You keep on saying they will not read. हाँ, मैं सच में उनमें तो इतनी भी कायरता है, इतनी वो ये भी नहीं कह सकते हाँ भाई मैंने ये पाप किया, मैंने नहीं पढ़ा, And इतना there भी are नहीं कह सकते। people so cowardly that they will not acknowledge their sins openly and say, yes, I have not read हाँ, it. वो हिम्मत नहीं है उनके अंदर की। They don't have the courage. आप मगर खैर चलिए, आप सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे। You can keep on listening, we can keep on telling you. हाँ, और जब उठे तो कपड़े झाड़ के उठ जाना, कहीं कुछ चिपक के ना चला जाए आप। And when you get up today, shake your clothes lest anything of the word stick to you. नहीं तो वो परेशान करता फिरेगा आपको। Otherwise, that word will keep on troubling you. हाँ, वो बात आपको चुपती रहेगी। That word will keep on troubling you. आइए हम पढ़ते आगे बढ़िए। Shall we read forward? अब इसके पास पहली विजय जो अम्मोनियों पर उसने पाई, उसके बारे में हमें 11 अध्याय में मिलता है। And the first victory that he got over the Ammonites we see in 1 Samuel chapter 11. हाँ, और बहुत अच्छी विजय थी। पहला सैमुएल 11 अध्याय 12 और 13 पढ़ दीजिए। And it was a great victory. 1 Samuel chapter 11 verse 11 and 12. 12 and 13 भाई। तब 12 and 13. लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज करेगा, उसको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। हाँ, जब शाऊल राजा बना था, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ आपके पास, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था इनको, ये क्या राज करेगा, है गधे चराता फिरता है ये हम पे क्या राज करेगा, इसे राज करना क्या आता है, और बिन्यामीन के गोत्र का है। लोगों ने इसे बहुत इंसल्ट की थी इसकी। At the time when Saul made king, people had really insulted him by saying, how will he rule over us? He looks after donkeys, feeds donkeys, he's the tribe of Benjamin. अब ये राजा बन गया, बड़ी Now विजय he's इसके king. हाथ आई। Now the authority is in his hands. अब बदला ले सकता था। Now he can take revenge. हाँ, अब भेज सकता था अपने सरकारी अफसरों को। He could now really take full control over his officers. हाँ, इनका अभी इन्हें सिखाओ खूब अच्छी तरह से। He could teach them a lesson. मगर इसके सलाहकारों ने कहा, यार इन्हें अब सिखाई दे यार तू। And his counselors said, you teach them a lesson. हाँ, शाऊल क्या? What does Saul say? बदला नहीं। Not a man shall be put to death. I will not take revenge. इतनी बड़ी प्रभु ने हमें विजय दी और हम ऐसा काम नहीं करें। The Lord has given us such a great victory. We will not do anything like that. अब मौका भी था और सलाह भी थी, मगर प्रभु से कितना डरता था ये आदमी कि नहीं, मैं बदला नहीं लूंगा। He had both opportunity and counsel, but he feared the Lord. I will not do this. यहाँ से शुरुआत की। That's the beginning he made. जब राजा बनाया जाता, छुप गया था कि मैं इस लायक नहीं कि राजा बना। When he was about to be made king, he hid himself. I am not fit to be king. प्रियो, एक जीत कोई आखिरी जीत नहीं होती। One victory is not the final victory. हर दिन हमें जीत के साथ जीना पड़ता। We have to live with victory every day. अगर तू मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. अब कहानी बदलनी शुरू हो गया। Now the story starts changing. इतनी बड़ी विजय के बाद, After such a great victory, और बदले की भाव पर भी इसने विजय प्राप्त करी। and he got victory over the feeling of revenge. अब कभी अपनी अपनी धार्मिकता पे घमंड आने लगता है। And sometimes we start having pride over our own मैंने ये नहीं self-righteousness. किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने इतना दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, ये सब बातें अंदर कहीं पनपती। And I have done this, I have done that, I have done this to that person. So all these things rise in us. अरे ये जो जमीन है, ये जो मट्टी है, ये शापित मट्टी है। And this clay is cursed clay. हाँ, ये उस क्ले से बनी, उस मिट्टी से बना हुआ है। We are made of that dust that is cursed. इसमें बहुत छोटे छिपे हुए कहीं ना कहीं कुछ बीज पड़े हैं जो दिखते भी नहीं है। And there are some hidden seeds within it that we can't see. हाँ, जो कांटे और ऊट कटारे उगा देते हैं अपने आप। That which give rise to thorns and thistles. और पता भी नहीं चलता ये कांटे और ऊट कटारे कब किस उगड़ जाते हैं। And we don't even realize when thorns and thistles will come. हाँ, और फिर हम पाप की ढलान पर एक कदम रखते हैं, तो पाप की ढलान इतनी तीखी ढलान है कि एक कदम रखो, अगला दूसरा कदम अपने आप उग जाता है।
Then we put our foot on the slope of sin, and the slope of sin is so steep that one step automatically follows another. ये अंदर पनपने लगते, रोज मारने पड़ते, रोज मारने पड़ते। These thorns grow in us every day. We have to crush and remove them every day. हाँ, मेरा मैं उठने लगता है, वो पुराना प्रभु कहता है, My same old I rises up, मैं रोज अपने आप को मारता हूँ, रोज and अपनी क्रूस उठानी पड़ती I have to kill it every day, और अपनी क्रूस रोज उठानी पड़ती है। and I have to carry my cross every day. अब 13 अध्याय आता है, दूसरा युद्ध। Now we come to chapter 13. 13 अध्याय में First Samuel chapter 13. हाँ, अब सैमुएल से कहा, भाई तू इतने दिन तक इंतजार करना। सैमुएल ने कहा साउल से कि तू इतने दिन इंतजार करना। Now before a battle, Samuel told Saul, "You wait for me for so many days." हम प्रभु के समय का इंतजार नहीं करते। We don't wait for the Lord's time. आप जिस मुश्किलों से निकल रहे हैं उसके लिए एक समय प्रभु ने निर्धारित किया, उससे पहले आप जल्दबाजी मत करिए। The trials that you're going through, the Lord has set a time for that. Do not hurry. हर एक बात का आपके लिए एक समय है, For everything there is a time. और जिन मुश्किल और परेशानियों से निकल रहे हैं उसका एक समय, आप धीरज मत खोइए। And there is a time for the problems, difficulties you're going through. Do not lose patience. मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, धीरज मत खो, मैं खुद खो देता हूँ। I am telling you, don't lose patience, but I lose patience. ये हम सबकी आदत है। This is each one's habit. हम तो कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं में जादुई प्रभाव होना चाहिए, इधर प्रार्थना करें, उधर से भाई जी टेलीग्राम, उधर से भाई जी मनी ऑर्डर आ जाए। We believe that our prayers must have a magical power. We pray from this side and the money order comes from the other side. नहीं, वो प्रभु का अपना एक समय है। But the Lord has his own time. भाई कह रहा था पूरी रात प्रभु बीच में ही कर सकता था, नहीं पूरी रात सिखाया, टाइम था। And our brother was sharing that the Lord taught them the whole night, they caught nothing. हाँ, तो अब्राहम भी समय का इंतजार नहीं कर सकता, Abraham did not wait for the Lord's time. और इस्माइल को पैदा कर लिया। And he gave birth to Ishmael. और प्रियो, हमेशा अधिकतर ऐसे लोग कर जाते हैं, ये कोई बड़ी बात Many of us end up doing like this. मगर इसमें अब ये बात आने लगी कि ये अपने पाप से पश्चाताप नहीं करता था। But the one thing that started coming in him was he did not repent for his sin. फिर ये बेवकूफी के काम करने लगा। इसके बाद 14 अध्याय में, After that, from chapter 14, he started doing stupid things. भाई आपको लड़ना हो और उस समय क्या कर रहा है, बड़ी धर्मीपन दिखा रहा है। You're supposed to fight and you're trying to show your righteousness. अरे युद्ध के टाइम में तू कह रहा उपवास रख लो, अबे भाई लड़ेंगे क्या वो? At the time of war, he's saying, but the time of battle, he's saying, people fast. अगर मेरा बेटा भी उपवास को तोड़ेगा तो उसकी गर्दन काट दी जाए। If my son will break the fast, cut off his neck. ये बेवकूफी काम है। ये उपवास का इस तरह, ये उपवास नहीं है। प्रभु ने कहा जब समय आएगा तो मेरे लोग उपवास करेंगे, ये समय नहीं है उपवास का। युद्ध में जब खड़े हैं लड़ने के लिए, वो भूखे प्यासे और प्यासे क्या लड़ेंगे? This is nonsense. This is not the time of fasting. How will hungry people fight? The Lord said, my people will fast at the right time. अपना उपवास का प्रचार करने के लिए वो सब दिखाने का दिखावा आ गया सब। And he became an outward show which should tell others about his fasting and righteousness. और 15वें अध्याय तक आते आते वो आधी आज्ञा मान लेता, आधी छोड़ दो। And by chapter 15, he would obey some, leave the others. हाँ, आधी आज्ञा मान ली और half obedience. हाँ, अब इस जगह पर आकर खड़ा होता। And he came and stood at this point. वो आधी इसलिए अपना विवेक को शुद्ध करने के लिए कि भाई मैंने तो नहीं किया। Half because his conscience used to prick him. हाँ भाई, थोड़ी सी इधर उधर से ले लेता हूँ और भाई जी कुछ ऐसा कर लेता हूँ, इतना तो चलता है। मगर मैं प्रभु घर जाता हूँ, प्रभु का पैसा देता हूँ, प्रभु के लिए ये करता हूँ, ये सब मक्कारी है। अपने विवेक को संतुष्ट करने की बात। I do some bit of fraud here and there and take some money here and there, but I go to the Lord's house, I give to the Lord, I give my 10%. This is all hypocrisy. पुलिस वाले ने 5,000 का चालान देता, 500 रुपए में काम हो गया, तो कैसे क्या बुराई है? The चालान would have been 5,000. I gave him 500 bribe. Now, what is the wrong in that? हाँ, तो प्रभु एक बात सैमुएल उससे एक बात कहता है। So Samuel says one thing to him. देख, प्रभु ने तुझे कहां से कहां पहुंचाया? From where the Lord has taken you and brought you. तू क्या था और मैंने तुझे कहां पहुंचाया? What you were, what I have made you.
पहला सैमुएल 18:8 पढ़िएगा। 1 Samuel 18:8. 1 Samuel 18:8. पहला शमूएल 8. 18:8। जी भाई। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों। वो नहीं, सॉरी, पहला सैमुएल 15:3, सॉरी 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3। 15:3। हाँ 3। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। ना भाई 30, सॉरी 30। अच्छा भाई, जी भाई। 30। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो अभी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। Then he said, I have sinned, yet honor me now, peace before the elders of. अब भी गलत बोल रहा हूँ, 15:17 पढ़िए, माफ कीजिए। 15:17। जी भाई। शामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने please read, भाई। और क्या यहोवा ने इजराइल का राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? So Samuel said, when you were little in your own eyes, were you not the head of the tribes of Israel, and did not the Lord anoint you king over Israel? तू जितना झुकता रहा, मैं तुझे उतना बढ़ाता। The more you kept on humbling, the more I made you rise. जब तू छोटा था, अपने मन में छोटा था, अपने विचारों में छोटा था, अपनी सोच में अपने आप को छोटा मानता था, क्या मैंने तुझे नहीं बढ़ाया? When you were little in your own eyes, when you were little in your own thinking about yourself, did I not rise you, make you rise? Now what are you doing? अब तू क्या करने लगा? And what are you doing now? अब क्या करता है? ये अधूरा पाप करता है। उसके बाद वो कहता है, प्रभु देख, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा, मैं सब पढ़ नहीं रहा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा है। तो फिर कहता है, तू, मैं तेरी सब जानता हूँ, तेरे अंदर की आवाजों को सुन रहा हूँ, जो लालच, घमंड, बैर, द्वेष की आवाजें, मिमियाना जो है तेरे अंदर, वो मुझे सुनाई देता है। And Samuel says, I can hear the voice of greed within you. I can hear the bleating of the sheep. जो कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ। What no one can hear, I hear. तो अपने विरोधियों के बारे में क्या रखता हूँ? मैं सब सुनता हूँ। जो तेरे अंदर बोलता है, वो मैं बाहर सुनता हूँ। What you keep against others in your heart, I can hear outside clearly. मैं तेरे लालच को सुनता हूँ, देखता हूँ। And I hear the greed in you. तो ये जो आवाजें आ रही है, मुझे मालूम है कहाँ से आ रही है। The sound that is coming, I know where it is coming from. अब उसके सामने झूठ तो बोल नहीं सकता। Now you cannot speak a lie in front of Samuel. तो यूं कहा, भाई जी ऐसा है, देखो मैंने पाप किया, हो गया। But he said, yes, I have sinned. मगर एक बात करो सैमुएल साहब। But Mr. Samuel, please do one thing. हाँ, कि देखो मैं राजा हूँ, प्रजा के सामने मेरा आदर तो करो कम से कम, इतनी बेइज्जती। I am a king. Do not dishonor me in front of my people. Honor me in front of them. पापी की तरह व्यवहार ना करो। Do not treat me like a sinner. प्रभु किसी की परवाह नहीं करता, किसी का आदर नहीं करता, जो जैसा है वो मुंह देख के न्याय नहीं करता। तू राजा है, बड़ा है, बुढ़ा है, जवान है, बच्चा है, बच्ची है, तू सास है या बहू है, सब पर सीधी उंगली वार करता। The Lord does not make partiality with the word of God, whether you are a man, woman, caste, creed, nationality, color, age, nothing. The Lord directly points a finger at you. हाँ, अब 15:30 पढ़िएगा। And read 1 Samuel 15:30. 15:30। यस भाई। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो अभी मेरी प्रजा के पुरनिये और इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट। थोड़ी मेरी इज्जत तो थोड़ी रख, मेरी पोस्ट की तो इज्जत रखे। Oh, at least have some respect for my position and my status. हाँ, प्रियो, सैमुएल के साथ खड़ा होना उसकी मजबूरी थी। उसे मालूम था अगर सैमुएल बिदक गया तो भाई जी प्रजा बिदक जाएगी। मेरे To stand with Samuel was his compulsion, because he knew that if he doesn't stand with Samuel, the people will go against him. अब वो जो कभी बदला लेने के भाव से नहीं जीता था, आज वो किस भाव से जीता है? विरोध से। When Samuel walks away, the people also walk away. Now what is he living with? He is living with bitterness. पाप की ढलान पर कैसे नीचे आता जा रहा है। See how he is constantly coming down on the slope of sin. पहला सैमुएल 18:8 पढ़िएगा। So read 1 Samuel 18:8. 1 Samuel 18:8। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ
और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उनको उसको अब क्या मिलना बाकी है। हाँ, पहले तो जो उसे मारना चाहते थे, उसे उतारना चाहते, उनके प्रति बदला नहीं लिया। आज सुन नहीं सकता अगर थोड़ा सा उसे नीचे करके आग दिया गया। There was first when he was little, he did not take revenge against those who hated him. But today he और cannot even stand a statement. अगर जलन का, घमंड, विरोध का पाप रखोगे तो ये पाप इतना हो जाएगा कि आप पागलपन के काम करने लगोगे। If you are jealous and envious of somebody, the sin will so overpower you that you will become crazy. हाँ, फिर आगे हम जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, हम जल्दी से देखते हैं। गिरावट इतनी तेज आ गई कि वो उस विरोधी के बारे में गलत बात सोचता रहा और उससे वो पागलपन की हरकतें करता रहा। And this became so powerful, he kept on thinking wrong about his adversary and he became crazy. हाँ, और ये विचारों ने उसने अपने मन में पाले, विरोध के विचार मन में पाले। He made these bitter thoughts grow in his heart. आप अगर पालते हैं तो आप बेवकूफी काम कर रहे हैं, बड़े बेवकूफी काम। If you are making these thoughts grow in your heart, you are a fool. है किसी के बारे में विरोध, आप उसके बुरा सोचते हैं, You are doing foolishly. Is there somebody you think evil about? तो फिर आप ही का बुरा होगा, ये बात है। Then evil will happen to you. हाँ, प्रभु से बचकर भागा नहीं जा सकता। You cannot run away from the Lord. अब गिरावट देखिए कितनी आ गई कि अपनी बेटी को विधवा बनाने के लिए, दाऊद को मारने के लिए उसने लोग भेजे। It's so much falling in his life. He was willing to make his daughter a widow by killing David. हाँ, और फिर और आगे बढ़ गया, फिर परमेश्वर के अभिषिक्त याजकों को कटवा डाला उसने। And then he got the anointed ones of the Lord cut off. हाँ, प्रियो, उसने अपनी आत्महत्या करने से पहले अपनी आत्मिक आत्महत्या कर ली। Before he committed a physical suicide, he committed a spiritual suicide. हाँ, तो प्रियो, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मिक आत्महत्या कर ली, उनका विवेक अब उन्हें दोषी नहीं ठहराता। So many have committed spiritual suicide, their conscience doesn't prick them anymore. भैया, हम करीबन लगभग हर संडे के लिए अनाउंस करते हैं पढ़ के आना, मगर उनके विवेक में जरा असर ही नहीं होता भाई, खोल के भी नहीं Every देखते। Sunday we announce, असर नहीं होता भाई। every Sunday we announce, read this portion and come, but their conscience doesn't prick them हाँ, इच्छा ही नहीं उनके अंदर, because they don't have a desire, उन्होंने अपने विवेक को जलते हुए लोहों से दाग लिया। because they have seared their conscience with a hot iron. हाँ, वो उनके मन में अपने असर हो। It doesn't impact their mind. हाँ, देखिए, अगर आप भी ऐसे विरोध में हैं तो आप शाऊल की राह पर, शाऊल के मार्ग पर खड़े हैं। If you're also having bitterness in your heart, then you're on the path of Saul. हाँ, देखिए, दूसरी तरफ हम देखते हैं, On the other hand, हाँ, दाऊद शाऊल को मार के सारा खेल ही खत्म कर सकता था, आराम से जी सकता था। David could have killed Saul and finished the whole thing and lived comfortably. मगर वो परमेश्वर के समय का इंतजार करता रहा, उसने अपना हाथ नहीं उठाया। But he kept on waiting for the Lord's time, did not lift up his hand. हाँ, उसने कभी हाथ नहीं बढ़ाया उसके विरोध में। He never lifted up his hands against against Saul. पवित्र आत्मा उसे बताती थी कि तू अपना पलटा आप मत देना। And Holy Spirit used to teach him, do not take your own revenge. हाँ, देखिए, फिर आगे चला शाऊल, उसे सही और गलत की पहचान खत्म हो गई। And Saul went ahead and he lost the difference between right and wrong. हाँ, खत्म हो जाती लोगों में। It is gone. पैसा देखा, खत्म, सही क्या गलत, सही पैसा है, सही है, खत्म। See money and the difference right and wrong is gone. Is it right money, wrong money? रिश्तेदारी खड़ी हो गई, शाम के गलत काम कर गए। If relatives are there, you end up doing something wrong. हाँ, प्रियो, कई धर्मी लोग ऐसा कर जाते हैं। Righteous people do like this. हाँ, वो सही और गलत की पहचान खत्म कर देता है। The sin stop the difference between right and wrong. प्रियो, आपका रिश्ता में कितने करीबी क्यों ना हो, मगर आप पाप के साथ कभी मत खड़े। Your relative might be so close to you, but never compromise with sin. योनाथन बहुत ही अच्छा आदमी था।
Jonathan is a very good man. मगर रिश्ता जहाँ बाप का है उसके साथ खड़ा। But as soon as the relation of his father came, he stood with his father क्योंकि बाप था because he was his father. और मरा किसकी मौत पर? बाप की मौत And पर। he died a similar death. हाँ प्रियो, बाप के लिए चाहे आपकी पत्नी हो, बच्चा हो, परिवार हो, आप कोई समझौता नहीं, कोई For आपका sin, there is हाँ, no compromise with your family, your wife, your children, ऐसा anyone. नहीं 2 मिनट में ये भी खुश हो गया, वो भी खुश हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नो नो। It is not like this. The Lord will also be happy. The family also will be happy. That is no. आप कहेंगे मैं पैसे का लालच, मैं अपना पैसा किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकता जिस पर जो है विश्वासी है और जो इस तरह वो मुझे बर्बाद करके दे। I will not give my money to a person who is a deceitful, who is an unbeliever, who will destroy my life. और मैं भोगूंगा उसका परिणाम। And I will pay the consequences. पहला सैमुएल जरा 16, 13, 14 पढ़िएगा। 1 Samuel 16, 13, 14. 1 Samuel 16, 13, 14. और इससे पहले क्या हुआ, मैं जरा सा पहले के जाऊं। इसके बाद जब देखा ये राह नहीं चलता, सैमुएल ने उसका साथ छोड़ दिया। And at the time when Samuel saw Saul is not walking the path of the Lord, Samuel और left his उसके बाद company. सैमुएल उससे कभी नहीं मिला। And after that, Samuel never met him. और नहीं, प्रभु ने तो हमें मेल मिलाप की आत्मा दी है, वो भी तो प्रभु का जन है। Oh, the Lord has given us the spirit of reconciliation. He is also a person of अरे Christ. शैतान परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता है। Oh, Satan uses the word of God. इनको कूद जा, तेरे पैर में चोट नहीं लिखी, क्योंकि लिखा है भजन 91 में कि तेरे पैर में ठोस नहीं। अरे बेवकूफ बना रहा तू। Satan says to the Lord, jump from the pinnacle of the temple and the certain angels will take you up lest you guard your foot against. Speaking a fool. कल मेरे भाई से बात हो रही फिल्म पे, तो कह भाई ने कहा हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। Yesterday I was talking about Philip and he said, we will not have any compromise. हाँ, हम माफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर हम किसी ऐसे समझौते के साथ नहीं खड़े हो सकते। We can forgive, but we will not stand with compromise. हाँ, मुझे एकदम ध्यान आया। I immediately remembered this. खैर वो कभी मौका लगेगा, फिर आगे बात हो जाएगी। We will talk about it some other time. पढ़िएगा पहला सैमुएल 16, 13, 14। 1 Samuel 16, 13, 14. तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भाई 16, 14, 13, 14, 16। हाँ 16, 13, 14। यस भाई। I think this क्या है? हाँ ठीक पढ़, बिल्कुल ठीक पढ़ रहा, बिल्कुल ठीक पढ़। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब बस अब रुको भाई, रुको। इधर उसने अभिषेक दाऊद का कर दिया और Samuel anointed David. वो सोचते थे साउल क्या सैमुएल के बाद क्या, उसका अभिषेक किया और पवित्र आत्मा उस पर प्रबल से उतरने लगा। And the spirit of God came upon David mightily from that day. इस आयत के बिल्कुल जुड़ी हुई आयत अगली 14 है। दूसरी तरफ क्या होने लगा देखिए। On the other hand, actually joined to this is verse 14. What happened? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। Spirit of the Lord departed from Saul and the distressing spirit from the Lord troubled him. उस पे प्रबलता से आने लगा, इस पर दुष्ट आत्मा प्रबलता से सवार हो। The spirit of the Lord came mightily upon David, and the spirit of evil came mightily upon Saul. भाई आपका माइक बंद हो गया भाई, माइक खोल। आदमी पर दो आत्माएं का, Two spirits work on man. आप दो आत्माओं के अधीन होंगे, या तो पवित्र आत्मा की या दुष्ट आत्मा। You will be under the impact of either of the two spirits, either the Holy Spirit or the evil one. एक बार उन्होंने कहा यूहन्ना याकूब ने कि हम आग गिरा दें इन सामरी गांव पे। Once James and John told the Lord, shall we bring fire upon this village of the Samaritans? तो प्रभु ने कहा उन दोनों चेलों से कि तुम नहीं जानते तुम में कौन सी आत्मा काम करती।
But the Lord said to those disciples, you do not know what spirit is in you. हाँ हाँ, तो या तो आपके पास परमेश्वर की आत्मा का काम करेगी या दुष्ट आत्मा। Either the spirit of God will work in you or the spirit of evil will influence you. देखिए, पवित्रता परिवर्तन लाती चली जाती है। Holy Spirit will keep on bringing holy change in you. हाँ, और साउल अपनी पवित्रता खोता चला। And Saul kept on losing his holiness. हाँ, और वो दुष्ट से दुष्ट होता चला। And he became from more and more evil in his life. हाँ, तो उसने दुष्टता के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। And he gave himself in the hand of the evil one. क्यों आप भी है, आप ऐसे विचारों के हाथ में, ऐसे कामों के हाथ में, ऐसे अभिलाषाओं के हाथ में अपने आप को सोचते हैं, तो फिर सोचते हैं तो शैतान आपका पूरा। If you are also having such lust and desires and thoughts in your heart and you've given over yourself to them, then Satan will fully use it. आपके जीवन की क्या गवाही है? What is your life's testimony? या ग्रे एरिया में मैं आधा Or you have a gray area. या ग्रे एरिया में जाता, You're living in a gray area. या तो आप सोए हुए विश्वासी हैं या खोए हुए विश्वासी हैं या सिर्फ नामधारी विश्वासी हैं। Either you are a sleeping believer or a lost believer or a just a nominal namesake believer. हाँ, अगर आप ग्रे एरिया में जी रहे हैं तो आपके इस विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। If you are living in a gray area, there's a question mark on your faith. अगर आप एकदम बीच के आप जीवन में जी रहे हैं, दिखाते तो सवाल है. विश्वासी से हो, इससे कोई फर्क You might show yourself to believer. It doesn't make any difference. नहीं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पढ़ने को कहते हैं, आपसे कहते हैं मैं प्रचार किया, किसी को सुसमाचार दिया, आपने भी जिद्दी पे अड़ा है, नहीं देंगे। For example, we tell you to read or we tell you to share the gospel with somebody. It is clearly see. हाँ, वो आप जान रहे हैं आदमी बकवास करता है, इसमें क्या सुनने करेंगे। Oh, this man speaks nonsense. What's the point? आपको सही और गलत समझने की सामर्थ खत्म होती है। You have lost the power to differentiate between right and wrong. आपको आपका विवेक अब परेशान नहीं करता। Now your conscience does not trouble you. हाँ, और फिर कंप्रोमाइज के करना बहुत खतरनाक खेल है। And compromise is a very dangerous game. हाँ, अब क्या हुआ? अब उस दुष्ट आत्मा ने इसे भूत और पिशाचों के पास तक खींच लिया। भूत और पिशाच बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? जादू टोना। Yeah, okay. So that evil spirit led him to ghosts and to magicians and black magic people, those kind of people. क्योंकि परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी थी। Because the Lord had stopped speaking to him. और पाप उसे अब धीरे-धीरे अंतिम बर्बादी की तरफ खींच ले गया। And sin was pulling him to a total destruction. हाँ, अब उसे पता नहीं लग रहा कि वो स्टेप बाय स्टेप किधर जा रहा है। He is not realizing step by step where his life is headed. इसलिए हर दिन अपने आप को जांचते रहो। That is why you need to keep examining yourself every day. हाँ, ये नहीं कि आपने एक दिन बहुत अच्छा बिता लिया तो आप आखिर तक अच्छे हो गए, ऐसा नहीं। It's not that you've lived one good day, you will live till the very end like that. अब ये भूत प्रेतों के पास चला। He now went to these ghosts and mediums. अब जानना चाहता था, यार मेरे पास कोई रास्ता तो हो, यही देंगी मुझे भूत प्रेत रास्ता। And I need to have a way, so these ghosts will show me a way. हाँ, उसने बताया कि भाई देख, सिर्फ अब 24 घंटे बचे। And told him 24 का उल्टा 42 होता है। 42 साल तुझे टाइम दिया, अब चल 24 घंटे और देता हूँ। And Lord had given him 42 years to live as king. Now he gave another 24 hours to him. हाँ, 42 साल इस्राएल पर राज्य किया था उसने। He had ruled Israel 42 years. मैं 42 साल से तुझे समझा रहा हूँ। I've been telling you for 42 years. तेरी उम्र इतने साल की हो गई है, 40 साल, 42 साल, 45 साल, 60 साल, 65 साल। मैं भाई इतने सालों समझा रहा हूँ, सह रहा हूँ तुझे। You are now. चल अब 42 का उल्टा 24 घंटे और दे। I've been trying to explain to you 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. Now I give you another 24 hours. और तुझे बता दिया तेरा अंत क्या होगा। And I've shown you what your end is going to be. हाँ, मगर अब पश्चाताप की आत्मा इस पर से उठ के चली। But the spirit of repentance had left him.
अपना अंत जानकर भी, सामने देखकर भी फिर पश्चाताप नहीं करता, Even knowing his end, he doesn't repent क्योंकि वो सीमा को लांघ चुका। because he'd already crossed the boundary. तो ऐसे जिद्दी विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी दिखाते हैं और वही खड़े अड़े खड़े, कोई परिवर्तन नहीं उनके जीवन। So such stubborn believers who show themselves to be believers, but there's no change in their life. उन्हें पता नहीं लगेगा वो क्षमा की सीमा को कब लांघ गए। They will not realize when they have crossed the boundary of forgiveness. वो बार बार अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते रहे। They dishonor the spirit of grace again and again. प्रभु बार बार उनका पाप, उन पे कमजोरियां उन पर प्रकट करता रहा, The Lord reveals his sins to them again and again. पर वो पश्चाताप के आत्मा का, अनुग्रह की आत्मा का ठुकराते रहे, अपमान करते रहे। But they kept on rejecting the spirit of grace, dishonoring him. पहला सैमुएल 28 और 19 पढ़िए। 1 Samuel 28 and verse 19. 28-19 यस भाई। फिर यहोवा तुझे समेत इजरायलियों को फलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इजरायली सेना को भी यहोवा फलिश्तियों के हाथ में कर देगा। कल, Tomorrow. अभी कितना टाइम दिया प्रभु ने? अभी How कर much सकता था, time? मगर फिर भी कल दिया। But the Lord gave him 24 hours. मगर भाई जी सब कुछ किया इसने, मगर पश्चाताप नहीं, He did everything, but did not repent. इसने पाप नहीं। He did not acknowledge his sin. प्रभु जिससे आप आज बात कर रहे हो, जिसके द्वारा बात कर रहे हो, वो मुझसे बात कर रहे हो, वो मेरा जीवन दिखा रहे हो, मगर इसने पश्चाताप करने से इनकार किया और परमेश्वर की आत्मा का अपमान किया। Dear Lord, that you're speaking right now, you're speaking to me, but he rejected the spirit of grace and dishonored him. अपना ही अंत नहीं किया, अपने परिवार को ले डूबा, और सिर्फ एक अपाहिज बच्चा इसलिए बचा कि लोग देख सके कि देखो इसके बाप साउल ने क्या किया था, ये परिणाम है। He not only committed suicide and that was his end, but there was one person left, Mephibosheth, Jonathan's son, lame person, to show this is the consequence of all that he had done. हाँ, और उसे देखकर हम अपना अंत याद कर सके, And to see that we remember our own end. अब आ गया बिल्कुल पश्चाताप नहीं। Did not repent even till the पहला end. सैमुएल जरा 31 अध्याय 4 से 6 पढ़िए और जरा ध्यान से सुनिए। So now read 1 Samuel 31, 4 to 6 and hear carefully. तब शमूएल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग मुझे आकर भोंक दें और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। लिखा है, बताते हैं, And Saul said to his armor bearer, draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised men. हाँ, लोग कहते हैं कि इसकी आंतें बाहर आ। And his intestines came out. हाँ, जब यहूदा स्कूती गिरा तो उसकी भी आंतें सब बाहर आ। When Judas Iscariot committed suicide, his intestines fell out. हाँ, जो कुछ भी छिपा हुआ था मौत ने सब कुछ सबके सामने प्रकट कर दिया। What? ये आदमी वास्तव में ये था जो तुम सारे जीवन सोचते रहे कि ये धर्मी था ये। Whatever was hidden came out after death. You kept on thinking he was a righteous man, but this is his reality. हाँ, वो उसकी सच्चाई मौत ने प्रकट कर दी कि ये जिसे तुम ये सोचते थे ये था। His death revealed his reality. This was that man. यहूदा स्कूती की भी सच्चाई सारा अंदर का बाहर आ गया। Even Judas Iscariot's whole truth came out. पहला सैमुएल 31 अध्याय 12 और 13 पढ़िए। Read 1 Samuel chapter 31, 12 and 13. तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिए। और तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। हाँ, सुनिएगा। Now here. फिलिस्तीयों ने इनकी लाशें उठाई, बड़ा जश्न मनाया, एक ट्रॉफी की तरह ले गए कि हमने ये जीत मारी है। और फिर इतनी सड़ चुकी थी उसकी लाशें, बुरी तरह सड़ चुकी थी।
Now कि the जब Philistines really celebrated Saul's death. The body is now completely decayed. हाँ, जब वहां के कुछ इस्राएली लोग उसे निकाल कर लाए उनकी लाशों को, And some Israelites, they brought the bodies back. हाँ, तो इतनी गल चुकी थी कि वो नहलाई नहीं जा सकती, They were so decayed they could not be bathed. और बिना नहलाए इस्राएली लोग अपने मुर्दों को दफन नहीं करते। Israelites never bury their dead without washing them. वो इतनी गल गई थी, अगर उन्हें पकड़ते तो हाथ अंदर घुस जाते, सड़ गई। So decayed, if you hold them, the hand will go inside. और तब उन्हें जलाना पड़ा उसे। So they were to be burnt हाँ, क्योंकि वो अब उठाने और छूने लायक नहीं रही। because they were no more worthy to be held. उसकी देह, आत्मा और प्राण सब जलाने के लिए चली। His body, soul, spirit, everything to be burnt. ये इस्राएल में सबसे शर्मनाक बात थी कि उसकी देह जलाई जाए। क्यों, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ये मैंने की भी है, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं। Terrible thing that his body was burnt in Israel. We'll talk about it some other time. हाँ, तो फिर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हमेशा की निराशा के साथ वो दफना। And he was buried forever in disappointment under a juniper tree. हाँ, दफना दी। He was buried. इस पूरी कहानी आपसे क्या कहती? उसकी हड्डियां गाड़ दी गई. His bones were buried. Yeah. So what does the whole story tell us? भाई वो वैसे जलाया गया था, सही तरीके से जलाया। So भाई, it's written the bones were buried. जो आपने कहा ना गाड़ा गया, तो हड्डियां गाड़ी गई थी जलाने के बाद. The bones were buried, not the body. The body was burned. हाँ, और इस तरह क्या हुआ कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है? What does this story teach us? हाँ, जरा इस बात को, कहानी को खत्म करते हुए इन बातों पर विचार करें। When we end this story, let us reflect on this truth. साउल सिर्फ अपने बारे में सोचता, Saul only thought about himself. सिर्फ अपने लिए जीता था, only lived for himself. शापित है वो विश्वासी जो सिर्फ अपने लिए सोचता है और अपने लिए जीता है। Cursed is the believer who only thinks about himself and lives for himself. आप अपने आप से सवाल कीजिए, Ask yourself, क्या सिर्फ आप अपने लिए जीते हो, अपने लिए सोचते हो, आप साउल के साथ तो नहीं खड़े थे? if you only live for yourself and think only about yourself, are you standing with Saul? दूसरी बात, Secondly, हाँ, मैंने दूसरी बात, वो जलन और विरोध से भरा, he was full of jealousy, envy, जिसने उसकी सारी आशीषें जला। which burnt all his blessings. आप किसी के प्रति जलन विरोध से भरे हुए तो नहीं हो? Are you full of jealousy, bitterness, opposition against anyone? ऐसे लोगों के साथ तो नहीं खड़े? Are you standing with such people? अगर आपके अंदर ये विरोध की बात है तो आप साउल के मार्ग पर खड़े। If you have this bitterness in your heart, you're standing in the way of Saul. तो दूसरी बात, पहली बात मैंने बताई कि वो सिर्फ अपने लिए जीता था, जलन और विरोध से भरा था। तीसरी बात, वो कायर था, उसमें अपने पाप को मानने की क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी। The first thing, he only lived for himself. Second, he was full of jealousy and bitterness. The third thing, he was a coward, did not have the courage to accept his sin. हाँ, अपने पाप को मानने की उनमें हिम्मत नहीं थी। They do not have the courage to acknowledge their sins. हाँ, तो भाई प्रभु मैंने पाप तो किया है, मगर लोगों के सामने मेरा आदर तो करो, नहीं सारी इज्जत एक तरफ उतार के रखने की। Oh, I have sinned, but honor me, respect me in front of others, otherwise they will completely humiliate me. दाऊद ने कहा मैंने किया, मैं हूँ, सिर्फ मैं पापी हूँ। David says, I have sinned, I am the man. मैंने व्यभिचार किया, I have committed adultery. तो कायरता है जो अपने पाप को मानने नहीं देती अंदर से। So cowardice that stops you from acknowledging your sin. और अगर आप अपने पाप को खुलकर मानने की हिम्मत नहीं रखते तो आप कहीं साउल के साथ तो नहीं खड़े। If you do not have the courage to acknowledge your sins, are you standing with Saul? तो तीसरी बात, सिर्फ अपने लिए जीता था, विरोध और जलन में जीता था और कायरता में जीता था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने पाप को मान सके।
lived only for himself, lived with jealousy and bitterness, had this cowardice to not acknowledge his sins. हाँ, चौथी बात, वो बेवकूफी के साथ मौके की कीमत Fourth, नहीं- fourth, he lived foolishly, हाँ, फिर वो मौके की कीमत नहीं जान, did not realize the value of opportunity, आखिरी 24 घंटे की भी कीमत नहीं जानी कि कितने बेशकीमत। even did not realize the value of the last 24 hours in his life. तो मैंने 4 बातें बताई, So I told you 4 things. सिर्फ अपने लिए जीता था, Only lived for himself, जलन के साथ जीता था, lived with jealousy, हाँ, कायरता के साथ जीता था, पाप lived with मान cowardice, और बेवकूफी के साथ जीता था, मौकों की कीमत नहीं जानता। and lived with foolishness, did not realize the value of मैं फिर opportunity. बोल रहा हूँ आपसे, वो अपने लिए जीता था, जलन के साथ जीता था, कायरता से जीता था, बेवकूफी से जीता था। So he lived for himself, he lived with jealousy, he lived the life of a coward, and he lived foolishly. इसलिए सारा जीवन मक्कारी का जीवन जिया। That is why his whole life is a life of hypocrisy. तो मैंने और आपने बहुत बेवकूफी की है, बहुत गलती की। You and I have done a lot of foolishness and a lot of mistakes. तो कई बार हमारा सर शर्म से झुक जाता है। Many times our head is hung in shame. हाँ, मगर प्रभु ने आज फिर मौका दिया, ये बेवकूफी मत करो। But वो today- क्षमा लेकर खड़ा है, आशीष लेकर खड़ा है, कहीं हम बेवकूफी ना करें। Today the Lord is once again giving an opportunity. Don't do foolishly, standing with blessing and grace. हमने बहुत 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 ऐसे काम किए और शर्मनाक, हमारा सर शर्म से झुक जाता है, और फिर भी प्रभु आशीष देने को तैयार है। We have done shameful things, but the Lord is still willing to bless us. हाँ प्रियो, क्या साउल की राह तो नहीं चल? Are we walking in the path of Saul? आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray.